So we'll start again from multiple choice questions. Let's start with the very first one. Financial sector reforms were mainly related to banking, insurance, both stock market. So they were related to both banking as well as insurance. We'll go with the option C, both. International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, is popularly known as World Bank, from where India took loan back in 1991. Dash was the objective of import substitution policy in India to protect the domestic industry. Second chapter में भी इस क्वेश्चन ने पीछा नहीं छोड़ा था, थर्ड चैप्टर में भी पीछा नहीं छोड़ रहा. The process of privatization is where a company is transferred to a NPO. Services that were previously supplied are outsourced. A few public sector enterprises are sold to private sector. बेटा गवर्नमेंट की जब कंपनी प्राइवेट को सेल करी जाती है, it is transfer of ownership under privatization. We'll go with this one. Profit making public sector undertakings were given special status of Maharaja, Maharatna, King, none. So they were given status of Maharatna. उनसे कम प्रॉफिट नवरत्ना, उनसे भी कम मिनी रत्ना. Identify the incorrect statement related to GST. It ensures uniformity. इसी पर्पज से GST लाया गया था ताकि यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करा जा सके डिफरेंट स्टेट्स में. It ensures better tax compliance and tax collection. Definitely yes. पहले वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वेरियस टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे which were difficult to get collected by the producers. All types of direct and indirect taxes have been subsumed by it. बेटा सिर्फ इसमें कौन से वाले टैक्सेस आए हैं? इनडायरेक्ट. ठीक है, तो स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट दैट अल्टीमेटली द स्टेटमेंट इज सेइंग कि डायरेक्ट टैक्सेस तो अभी भी हैं. देयर इज इनकम टैक्स, देयर इज कॉर्पोरेट टैक्स, देयर इज कैपिटल गेन टैक्स, देन दे हैव नॉट बीन सब्स्टिट्यूट अंडर जीएसटी. नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो इसमें से बन सकता है. हाउ मेनी टैक्सेस हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड इन जीएसटी? There are 17. And in which year? 2017. GST was enacted. The dash started by the government since 1991. New economic policy. Now NEP also stand for new education policy. But here in this chapter it stands for new economic policy. Privatization of the public sector undertakings by selling of a part of equity is called as डिसइन्वेस्टमेंट. पूरे तरीके से अगर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया तो इट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अंडर प्राइवेटाइजेशन. बट अगर उसका पार्ट सेल हो रहा है तो इट इज डिसइन्वेस्टमेंट. एक सेकेंड, डबल शीट निकालो राघव, स्टार्ट कर दो, ये पीछे पास कर दो, फोन अपना आगे रख देना बेटा. When work is done outside the country, बेटा साथ नहीं बैठना, अलग बैठना है. आगे आ जाओ अर्श के या फिर प्रथम के आगे आ जाओ. When work is done outside the country due to low wage rate, reasonable degree of skill and accuracy it is known as. बेटा जब आप जो काम पहले खुद कर रहे थे अब आपने वो किसी और को प्रोवाइड कर दिया, the activity is called as outsourcing. Assertion reasoning. Deficit in BOP was one of the reason for implementing new. It was one of the reason. सिर्फ ये रीजन नहीं था, BOP deficiency में था. What does it mean? Our imports were very high as compared to the exports at that time. जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही थी उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर जा रही थी. जितने ट्रांसफर्स यूनिलेटरल आ रहे थे उससे ज़्यादा इंडिया के बाहर जा रहे थे. तो एज अ रिजल्ट बीओपी वाज इन डेफिशिएंसी. ठीक है. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग डिडंट अलाउ प्राइवेट सेक्टर्स टू कम्पीट. लाइसेंसिंग की वजह से हर किसी को लाइसेंस लेना पड़ता था, तो कॉम्पिटिशन हो नहीं पा रहा था, बिकॉज सिर्फ वही पर्सन प्रोडक्ट्स बना पा रहा जिसके पास लाइसेंस था. ऊपर बात हो रही है बीओपी डेफिशिएंसी में था, उसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा गया. रीजन में उन्होंने दे रखा है कि लाइसेंसिंग की वजह से इंडस्ट्रीज कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी. दोनों ही बातें ठीक है, बट ऊपर वाली बात चैप्टर 3 से आ रही है और नीचे वाली बात चैप्टर 2 से आ रही है. तो दे आर नॉट, अगर ऐसा हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट द रीजन इज नॉट जस्टिफाइंग द assertion. But both the statements are true. We'll go with option B that says assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation of the assertion. Let's talk about question number 2. Financial sector reforms means liberalization in the policies of Reserve Bank of India. आरबीआई की जो पहले पॉलिसीज थी उनको थोड़ा सा फ्री करा गया. पहले कमर्शियल बैंक्स किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते थे और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एफडी एक्सेप्ट करा करते थे, कहाँ नई ब्रांच ओपन कर सकते थे, ये सब चीज़ों के लिए उनको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी. आरबीआई इसका डिसीजन लेता था. इन सब चीज़ों से आरबीआई को फ्री करा गया. रोल ऑफ आरबीआई रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर. बेटा बोथ द थिंग्स आर टोटली ट्रू. द ओनली थिंग दैट इज लैकिंग ओवर हियर इज कि इसमें पॉलिसीज आरबीआई की उन्होंने लिबरल करी, बिल्कुल लिबरल करी, बट जो रीजन उन्होंने दे रखा है कि जो आरबीआई का रोल था
वो रेगुलेटर से उन्होंने फैसिलिटेटर में कन्वर्ट करा। ये जस्टिफाई तो कर रहे हैं ऊपर वाली स्टेटमेंट को, बट द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग ओवर हियर इज द करेक्ट रीजंस व्हाई, मतलब किस सेक्टर में उन्होंने लिबरलाइज करा था। सिर्फ इतना तो उन्होंने बता दिया कि लिबरलाइजेशन हुआ था, बट हाउ वाज इट डन। अगर उन्होंने ये लिखा होता कि लिबरलाइजेशन हुआ, और अगर वो रीजन में ऐसा बता देते कि आरबीआई's रोल वाज चेंज फ्रॉम रेगुलेटर फैसिलिटेटर, as a matter of fact the rate of interest were now determined by the commercial banks, and now the commercial banks didn't have to take special permission from the central bank before opening a new branch, then we would have accepted. बट यहाँ पर काफी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है कि आरबीआई का जो स्पेसिफिक रोल था वो किन एरियाज में रिड्यूस करा गया, और ऊपर उन्होंने लिखा कि लिबरलाइज करा गया। बट इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली आरबीआई के रोल्स में क्या क्या चेंजेस है वो ना तो उन्होंने बताया है असर्शन में, और ना वो उन्होंने बताया है रीजन में। सो दोनों ही बात अपनी तरफ से ठीक है, बट जो कंप्लीट जस्टिफिकेशन चाहिए, जो ये बात को एक्सप्लेन कर पाए कि हाउ वाज लिबरलाइजेशन डन, रोल चेंज हुआ, हम गलत बोल रहे हैं उस बात को, नॉट एट ऑल रोल वाज चेंज, बट हाउ, दैट इज मिसिंग समथिंग। सो वी विल गो विद ऑप्शन बी इन दिस वन एज वेल। 1991 में इंडियन रुपी को डीवैल्यू करा, तो अगर आपसे पूछे कितने परसेंट से डीवैल्यू करा था, तो इट वाज 20%। मेजर करेंसीज के अगेंस्ट इंडियन रुपी को डीवैल्यू करा गया था। रीजन दे रखा है, डीवैल्यूएशन से मोर फ्लो आता है फॉरेन एक्सचेंज का, बात तो ठीक है। दैट वाज द ओनली ऑब्जेक्टिव फॉर विच करेंसी वाज डीवैल्यूड। जिस करेंसी में 1990 में डॉलर एक्सचेंज हो रहा था, उससे हमने करेंसी को उनके लिए रीवैल्यू करा था, हमारे लिए डीवैल्यू करा था 1991 में। ऑन एन एवरेज 1990 में 17 रुपी से करीब डॉलर था, 1991 में उन्होंने उसको बढ़ाकर 22 रुपी समथिंग कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने। ऐसा स्टेप उन्होंने क्यों लिया, ताकि उन लोगों को हम 17 रुपीज की जगह 22 रुपीज ऑफर करें, उनको 5 रुपए का फायदा दिया हमने, ताकि या वहां से इन्वेस्टमेंट और इंडिया में आनी एक्स्ट्रा स्टार्ट हो, और हमारा सामान वो और ज्यादा खरीदना शुरू करें, यहाँ टूरिज्म बढ़ाए। पहले वो $1 लेकर आते, हम उन्हें 17 ऑफर करते 1990 में। 91 में हमने उन्हें ऑफर करना शुरू करा 22, ताकि उनको और ज्यादा इंसेंटिव मिले इंडिया में आके बिजनेस करने के लिए, इंडिया में आके टूर करने के लिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब ये दोनों बातें ठीक है। वी विल गो विद ऑप्शन ए इन दिस वन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, व्हाट वाज द कंडीशन इम्पोज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू गिव लोन। पहला उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाओ या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का रोल कम करो, रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मोस्ट ऑफ द एरियाज। दूसरा उन्होंने बोला कि ये जो प्राइवेट सेक्टर में तुमने लाइसेंसिंग लगा रखी है, इनको करा जाए थोड़ा सा लिबरलाइज द प्राइवेट सेक्टर विद अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस। तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है इनको रिमूव करो, एंड विद दीज 3 कंडीशंस एक्सेप्टेंस वी वर ग्रांटेड लोन ऑफ $7 billion। देन नेक्स्ट वन इज गिव द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। बहुत सारे नेगेटिव है जी। कंज्यूमर सोवरेनिटी बढ़नी शुरू हो गई, कंज्यूमर को पहले कुछ भी खिला दो खा लेता था, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बहुत बढ़ गई हैं। कंज्यूमर पहले कोई भी फोन लैंडलाइन चला लेता था, अब कंज्यूमर को स्मार्टफोन चाहिए। इस चीज में कुछ गलत नहीं है, इंडियन लोग बना दो, हमने यहाँ थोड़ी मना करेंगे सब बनाने के लिए, बट उससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान होना शुरू हो जब कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस वेस्टर्न कल्चर की तरफ शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी? क्योंकि जो काम पहले लेबर करती थी वो काम अब टेक्नोलॉजी के थ्रू होना शुरू हो गया। जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडिया में आनी स्टार्ट हुई, रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने रिमूव कर दी दैट टाइम। नेग्लिजेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, सब्सिडी देने गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कुछ टाइम के लिए, H5 सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल पे। इरिगेशन फैसिलिटीज पे उन्होंने एक्सपेंडिचर काफी कम करा, बिकॉज उस ईयर में गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत कम हो गए थे जब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन डिक्लेयर करा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉरेन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की वजह से हमारे यहाँ के फार्मर्स को कंपटीशन होना शुरू हो गया, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, पल्सेस में, एंड एज अ रिजल्ट हमें प्रॉब्लम्स हुई बिकॉज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फिर आप इसमें 4 पूछे है ना, अच्छा इन्होंने स्पेसिफिकली बोला नहीं। इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिक्कतें हुई, फॉरेन से चीप प्रोडक्ट्स इंडिया में आने चालू हो गए, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स लोगों ने खरीदने बंद कर दिया। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर उससे काफी ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हुआ, जीडीपी कंट्रीब्यूशन उससे अफेक्ट हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर का। रिफॉर्म के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ डाउन गई। व्हाई इज इट सो? रिफॉर्म जब आया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में भी मैंने बताया नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने उस टाइम पे निग्लेक्ट करा एग्रीकल्चर सेक्टर को। किस तरीके से उन्होंने निग्लेक्ट करा? पॉइंट नंबर 1, रिमूवल ऑफ सब्सिडीज ऑन H5 सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। रीजन नंबर 2, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से हमारे फार्मर्स को कंपटीशन ज्यादा फेस करना पड़ा। फाइन, इसमें अब रीजन नंबर 3
क्या दे सकते हो, अल्टीमेटली एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए थी इरिगेशन वगैरह में, वो गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी, काफी रिड्यूस कर दी। जो इरिगेशन एंड ऑल पे रिक्वायरमेंट चाहिए होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, मार्केट लिंकेज रोड चाहिए, वेल्स चाहिए, टैप वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए, वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने रिड्यूस करा। ये एग्रीकल्चर सेक्टर को दिक्कत हुई। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या दिक्कतें आई, ठीक है, चीप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, फॉरेन से जो प्रोडक्ट्स सस्ते रेट पर आने शुरू हो गए, उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ कम्पीट करा। स्पेशली चाइना से जो प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट होकर आते हैं, उसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा थ्रेट होनी शुरू हुई। नंबर 2, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा था, उसके साथ जो कंपटीशन था वो एकदम से बहुत स्पाइक कर गया, एंड एज अ रिजल्ट हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसके साथ अडेप्ट नहीं कर पाई, बिकॉज हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पहले इतने थे ही नहीं। हमारी इंडस्ट्रीज ना तो इंडिया में किसी के साथ कंपीट कर रही थी, क्योंकि लाइसेंस से ही होता था कुछ भी काम करने के लिए, और ना वो इंटरनेशनली कंपीट कर रही थी, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी बाहर जाने के लिए। सो दैट्स वाई इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत हैवी लॉसेस, एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैड टू कंपीट विद द इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज व्हेन दे वर अलाउड टू एंटर इंडिया। ये दिक्कतें हुई एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में। अच्छा, फायदे क्या हुए बेटा, हर चीज़ की नेगेटिव साइड नहीं होती, बेनिफिट्स भी होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे जीडीपी का एनुअल रेट ऑन एन एवरेज 8% से ग्रो होना शुरू हुआ आफ्टर द पॉलिसी। हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए, स्पेशली ऑटो पार्ट्स के, सॉफ्टवेयर के, टेक्सटाइल के, बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ फॉरेन रिजर्व्स बहुत इंप्रूव हुए। 1990 में जो सिर्फ $6 बिलियन थे, 2015 में वो $320 बिलियन तक पहुंच गए, और 2024 में तो $600 बिलियन वो पार कर चुके हैं। फॉरेन रिजर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में बहुत बड़ी, 1990 में बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट सिर्फ $100 मिलियन के करीब थी। 2014-15 में बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट $72.5 बिलियन तक टच कर गई। फाइन, सो दीज वर सम बेनिफिट्स दैट वी गॉट बिकॉज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई। 1990 में चीज़ों के प्राइस लेवल्स ऑलमोस्ट 11% से बढ़ रहे थे, 2014-15 में प्राइस लेवल सिर्फ 5.4% से इंक्रीज हुए थे। स्टैटिस्टिकल फिगर्स याद नहीं रख सकते हो तो कोई बात नहीं, बट अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है कि वैल्यूज बढ़ी है कम हुई है, रिजर्व्स बढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी है, फाइन, इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज हुए हैं, फाइन। सो दीज आर सम बेनिफिट्स दैट वी हैव गॉट बिकॉज ऑफ एलपीजी पॉलिसी। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, एलपीजी में क्या क्या आए थे, लाइसेंसिंग रिड्यूस हुई सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज में, रिलैक्सेशन हुआ, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में कॉन्ट्रैक्शन हुआ पब्लिक सेक्टर का। पहले पब्लिक सेक्टर 17 इंडस्ट्रीज थी 1956 में, फिर नंबर कम कर उन्होंने 8 करा, फिर राइट नाउ द नंबर इज ओनली 2 इन रेलवेज एंड एटॉमिक एनर्जी। डिफेंस भी अब प्राइवेट लोग कर सकते हैं विद लाइसेंसिंग कंडीशंस फुलफिलमेंट, बट अल्टीमेटली 2 इंडस्ट्रीज, रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी आर स्टिल अंडर द पब्लिक सेक्टर। ये 2 बातें। तीसरी बात, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की लिस्ट को उन्होंने डी रिजर्व करा, ताकि काफ़ी लोग जो पहले स्मॉल स्केल में काम कर सकते थे अब बड़े स्केल पर भी उन चीज़ों का बिजनेस करा जा सके, लाइक चिप्स का, बिस्किट्स का, नमकीन का, आइसक्रीम्स का, जो पहले सिर्फ स्मॉल स्केल में रिजर्व थी, उन आइटम को डी रिजर्व करा, ताकि बड़े इंडस्ट्रीज भी, बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी बिजनेस को कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉरेन कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करवाने में जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव करा गया, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। प्रोडक्शन कैपेसिटी पे उन्होंने फ्रीडम दे दी, जितना प्रोड्यूस करना है, जितनी क्वांटिटी में करना है करो। सो दीज वर द सम इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स दैट वी गॉट आफ्टर द रिफॉर्म्स। मेंशन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बेटा फायदे के, एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्रेटर प्रोस्पेरिटी फॉर कॉर्पोरेट फर्म्स, कंपनीज के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है जब हम ग्लोबलाइज होते हैं। इंडिया के बाहर जाकर आप सामान बेच सकते हो, तो आपका सामान सिर्फ इंडिया में कन्फाइंड नहीं है, आप मल्टीपल कंट्रीज में जाकर सामान आप सेल कर सकते हो, फाइन। और बेटर, आपको टेक्नोलॉजी बेटर मिलती है, और अल्टीमेटली आप फॉरेन कंट्री में जाके डील कर सकते हो, एंड कंज्यूमर को बेटर वाइड चॉइस मिल जाती है कि सिर्फ इंडियन सामान नहीं खरीदना, अब हम मल्टीपल कंट्रीज का सामान इंडिया में अवेलेबल है वो भी देख सकते हैं। दिक्कतें कहाँ पर आती है ग्लोबलाइजेशन से, डिस्पैरिटीज हो जाती है कंट्रीज में। अब इंडिया में इतना सामान चाइना का आ रहा है, तो इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके दिल में, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी आ जाएगी चाइनीज मैन्युफैक्चरर के लिए। और ग्लोबलाइजेशन का जो मेन बेनिफिट है वो एक्रू होता है डेवलप्ड नेशंस के लिए, नॉट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। जो कंट्रीज के पास एक्सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनको जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं वो काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर जाते हैं एज कम्पेयर टू जो कंट्रीज की मतलब इनकम इतनी नहीं है, जो नेशंस पुअर है, जिनके यहाँ लोगों की इनकम लो है, उन कंट्रीज को इतना ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट नहीं पास ऑन हो पाता है। Next one is discuss the policies under globalization. Under this is the very last question, and then we are done with the questions of chapter number 3. बेटा ग्लोबलाइजेशन में सबसे पहले तो हमने फॉरेन इक्विटी लिमिट को इंक्रीज करा।
पहले फॉरेनर्स को इंडिया में बिजनेस करने के लिए परमिशन दी 40% इक्विटी की लिमिट के साथ, फिर उस लिमिट को बढ़ाकर हमने रेंज करा बिटवीन 51 टू 100%। दूसरा, इंडियन रुपी को 20% से डीवैल्यू करा। तीसरी बात, इंडियन रुपी पहले डिसाइड होता था गवर्नमेंट के थ्रू, फिर उन्होंने कहा कि जो ट्रांजैक्शंस होंगी रिलेटेड टू रेमिटेंसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फॉरेन टूरिज्म जो इंडिया में आएगा, तो जो ट्रांसफर्स आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगे, इस पे जो एक्सचेंज रेट होगा वो मार्केट के थ्रू डिसाइड होगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। लेटर ऑन गवर्नमेंट सेट फॉर एनी ट्रांजैक्शन, लेट इट बी इन्वेस्टमेंट, बोरोविंग्स, rate of exchange will be determined by the market, not by the government. So 1993 में गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था that exchange rate on foreign currency will be determined through the market, not by the government. मैंने आपको अभी तक 3 बताई है सर। एक फॉरेन इक्विटी लिमिट को बढ़ाया 40% से बढ़ाकर बिटवीन 51 टू 100% करा गया। दूसरी चीज, इंडियन रुपी को डीवैल्यू करा 20% से। तीसरा, जो इंडियन रुपी पहले पार्शियली कन्वर्टेबल था उसको उन्होंने फुली कन्वर्टेबल करा। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जितनी क्वांटिटी में आपको बाहर से सामान इंपोर्ट करवाना है करवाओ बिंदास होके, गवर्नमेंट आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। कस्टम ड्यूटी पे करो, जो इंपोर्ट करवाना है करवाओ, ड्यूटी पे कर दो, ठीक है। रिडक्शन इन टैरिफ्स, जो पहले के टाइम पे 200-250% तक थे, अभी 2007-8 वाले बजट में टैरिफ्स हमारे साथ हार्डली 10% थे इंपोर्ट करवाने पे प्रोडक्ट्स। सो दीज वर द पॉलिसीज थ्रू विच इंडिया बिकेम ग्लोबलाइज्ड। ग्लोबलाइजेशन करने के लिए मल्टीपल चेंजेस करने पड़ते हैं और हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के थ्रू ग्लोबलाइजेशन को अचीव करा। फिल इन द ब्लैंक्स अगर आ जाए ना, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू ग्लोबलाइजेशन, तो शुड बी लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो ये जो मैंने अभी आपको पॉलिसीज बताई, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इन लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, मेनली इन लिबरलाइजेशन, ड्यू टू विच वी वर नाउ ग्लोबलाइज्ड। सो आई बिलीव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेनली क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से ही थे। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर दिस वन।